أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سورہ نحل کے اندر یا سورہ نعم کے اندر میں جو اس کا نام رکھا گیا ہے نعمتوں والی سورت، اس اعتبار سے جتنی بھی نعمتیں اور جتنے بھی انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر فرمائے، ایمان والوں پر فرمائے، مسلمانوں پر فرمائے، ان تمام انعامات کا اور نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل تک ہمارا جو سبق ہوا تھا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرما دیا، انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نعمتوں کو ذکر کرنے کا منشا اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا بنے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے، جس کو اخیر کے اندر میں کل والے درس کے اخیر کے اندر میں اللہ نے فرمایا تھا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل اور پورا کر دیا تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ تمہاری باتوں کو نہ مانیں، منہ موڑ لیں، اعراض کریں، روگردانی کریں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمہ جو ہے صرف کھلم کھلا پہنچانا ہے، سمجھانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی بات کو ذکر فرمایا کہ ہر دور کے اندر میں جو بھی امت دعوت تھی، امت دعوت نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے نبی کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھا اور استعمال کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کے بعد میں انکار کرتے ہیں ان نعمتوں کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں کے زیادہ تر لوگ ہمیشہ اللہ کا انکار کرنے والے رہے اور کفر کرنے والے رہے اور نافرمان رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ بھئی ماننے والا اگر ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اگر اطاعت کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا کے اندر میں اس پر انعامات فرمائے، نعمتیں نازل فرمائی،
आखिरत के अंदर में भी अल्लाह तबारक व ताला उसको इनामात से और नेमतों से और अपनी रज़ामंदी की जगह से अल्लाह ताला नवाजेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई अगर इनकार करता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला आखिरत के अंदर में उसकी पकड़ फरमाएंगे। इसका तज़किरा इन आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िक्र फरमाया है। और आयत का तर्जुमा, मतलब और तफसीर ये समझने से पहले एक बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है। और माशाअल्लाह आप जानते हैं एक बात कि दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया काम करने की जगह है और आखिरत जो है वो बदले को हासिल करने की जगह है। इंसान दुनिया के अंदर में ये चाहे कि उसको बदला मिल जाए, अल्लाह तबारक व ताला बरकतों के तौर पर उसको दे, वो अलग बात है, वरना उसका जो ईमान का और आमल सालिहा का जो बदला है, ये बदला दुनिया के अंदर में मिल नहीं सकता। इसलिए कि एक अमल के बदले में अल्लाह तबारक व ताला जो जन्नत अता फरमाएगा और अदना दर्जे को जो जन्नत अता फरमाएगा, ये इस दुनिया से 10 गुनी जगह होगी। तो ये दुनिया जो है ये बदले की जगह ही नहीं है, ये अमल की जगह है। और आखिरत ये अमल की जगह नहीं है, बदला हासिल करने की जगह है। तो आखिरत के अंदर में अगर कोई तमन्ना करे कि बारी ताला मुझे दुनिया के अंदर में दोबारा भेज दे, मैं अच्छे आमाल और नेक आमाल करूँगा, फिर यहाँ पर वापस आऊँगा, तो उसको वापस आने की इजाज़त वहाँ से नहीं मिलती। अगर इंसान दुनिया के अंदर में मरने से पहले या आलमी तौर पर सूरज के मगरिब की तरफ से निकलने से पहले अगर तौबा कर लेता है कुफ्र से, शिरक से, गुनाहों से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं और उसकी तौबा को माफ़ फरमाते हैं। लेकिन अगर मौत की निशानियां और सकरात की हालत ज़ाहिर हो गई, ज़ाहिर के ऊपर में पर्दा पड़ गया और बातिन पर जो आज पर्दा पड़ा हुआ है उस पर से पर्दा उठ गया, फिर अगर इंसान अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। न कुफ्र से, न शिरक से, न गुनाहों से, किसी भी किस्म की अगर वो तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इसी तरीके से आखिरत के अंदर में जब अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ पेशी हो, उस वक्त के अंदर में अगर ये बंदा अगर अल्लाह ताला से तौबा करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तो वहाँ पर तौबा कबूल नहीं होती और वहाँ की भी माफ़ी कबूल नहीं होती। उसके बरखिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो भेजा था और उनकी जो उम्मत थी, उम्मत दावत, एक है मानने वाली उम्मत, उम्मत इजाबत, और दूसरा न मानने वाली उम्मत, उम्मत दावत। उम्मत दावत के खिलाफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान हश्र के अंदर में क़यामत के दिन में अपनी अपनी उम्मतों के खिलाफ गवाही देंगे। अपनी उम्मतों के खिलाफ गवाही देने का मतलब यह है कि उम्मत इजाबत, जिस उम्मत ने उस नबी की बात को माना, उनके खिलाफ गवाही नहीं देंगे, बल्कि अगर उनके अंदर में कोई गुनहगार भी होगा तो वह नबी उसकी सिफारिश करेंगे। लेकिन उम्मत दावत जो है, दुनिया के अंदर में जो भी नबी आए और अपना दीन, ईमान और इस्लाम पेश किया और लोगों ने इनकार किया, तो ये उम्मत दावत कहलाती है। इनके खिलाफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके खिलाफ के अंदर में गवाही देंगे। इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर में फरमाया, यौमा नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, और याद करो उस दिन को, नबअसु हम उठाएंगे, हम जिंदा करेंगे, मिन कुल्लि उम्मतिन हर उम्मत में से, शहीदन एक गवाही देने वाला, हर उम्मत के अंदर में से एक गवाही देने वाले को अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र के अंदर में और क़यामत के दिन उठाएंगे। सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर इजाज़त नहीं दी जाएगी उन लोगों को कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर वो मैदान हश्र के अंदर में और क़यामत के दिन अगर वो तौबा करते हैं
कुफ्र से, शिरक से और गुनाहों से, तो फिर उनको जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। वला हुम युस्तातबून, और न तो उनसे तौबा मांगी जाएगी। दुनिया के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मतलूब है, पसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे बंदे तौबा करे, मेरे बंदे तौबा करे, कुफ्र से, शिरक से, गुनाहों से तौबा करे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर में रग़बत दिलाई। कुरान पाक कहता है तूबू अय्युहल मुमिनून तूबू इलल्लाहि जमीअन तौबतन नसूहा, तौबा नसूहा करो। और दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तौबा करो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से और उसकी रहमत से, नाउमीद मत हो जाओ। अल्लाह की ज़ात से नाउमीद तो नाफरमान लोग और काफिर लोग होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर ये उम्मत गुनाह करे और गुनाह करने के बाद में तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है, और अगर ये उम्मत अगर गुनाह ही न करे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा कि जो गुनाह करेंगे और गुनाह करने के बाद में तौबा करेंगे। तो तौबा का जो महल और तौबा की जो जगह है वो दुनिया है। आखिरत के अंदर में न तो किसी को तौबा का हक दिया जाता है और न मौका दिया जाता है। वला हुम युस्तातबून, और न उनको तौबा का मौका दिया जाएगा। वइज़ा रअल्लज़ीना ज़लमू अल-अज़ाब फला युख़फ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून। वइज़ा रअल्लज़ीना ज़लमू अल-अज़ाब, और जब के वो लोग कि जिन्होंने जुल्म किया वो जब अज़ाब को देखेंगे, यानी ज़ालिमीन लोग क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर में अज़ाब को देखेंगे। फला युख़फ़फ़ु अन्हुम, तो उनसे जो है अज़ाब को हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और जब अज़ाब नाजिल हो जाएगा क़यामत के दिन तो उनको डील नहीं दी जाएगी और उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। ये मैदान हश्र का दूसरा किस्सा है या दूसरी मिसाल है। वइज़ा रअल्लज़ीना ज़लमू अल-अज़ाब, ज़लम और जुल्म के बारे में बताया था कि शिरक जो है ये भी जुल्म है और कुफ्र उससे बड़ा जुल्म है। अल्लाह की नाफरमानी ये भी जुल्म है। ये सब जुल्म करने वाले जो हैं जब अज़ाब को देख लेंगे मैदान हश्र के अंदर में तो फला युख़फ़फ़ु अन्हुम, वो अज़ाब उनसे कभी भी हल्का नहीं किया जाएगा। और जब अज़ाब आएगा, पकड़ लेगा अज़ाब, तो थोड़ी देर के लिए भी उनको मोहलत नहीं दी जाएगी और डील नहीं दी जाएगी। वला हुम युनज़रून, और न तो उनको डील दी जाएगी। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में और दूसरी तफसीरों के अंदर में लिखा है कि जब ज़ालिमों को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर में पकड़ेंगे और ज़ालिमों के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब का हुक्म दे देंगे, तो जैसे अल्लाह की तरफ से अज़ाब का हुक्म होगा तो फ़ौरन अज़ाब के फरिश्ते उनको उसी वक्त के अंदर में पकड़ लेंगे। एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए भी इनको मोहलत नहीं दी जाएगी कि अपना उज़र कोई पेश करे कि बारी ताला हम तो ऐसे थे न ये थे न वो थे जिसकी वजह से हम नाफरमानी में, कुफ्र में, शिरक के अंदर में हम मुब्तला हो गए। एक ज़र्रा बराबर भी डील और मोहलत नहीं दी जाती। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये दुनिया का जो ज़माना है, मौत से पहले का जो वक्त है और जो ज़माना है, ये मोहलत ही मोहलत का ज़माना है, डील ही डील का ज़माना है। अगली वाली आयत के अंदर में अभी 2-3 दिन पहले आया था कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुनाह के ऊपर में या जुल्म के ऊपर में पकड़ नहीं फरमाते कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर गुनाहों के ऊपर में फौरी तौर पर अगर पकड़ फरमा ले तो फिर हुए ज़मीन के ऊपर में कोई इंसान भी बाकी नहीं रहेगा और कोई जानवर भी रूए ज़मीन के ऊपर में बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला डील देते हैं। तो यहाँ पर डील मिली हुई है कि इंसान तौबा करे, इंसान रुजू करे, और तौबा करने के अंदर में एक तो गुनाहों को छोड़ देना। तौबा किसको कहते हैं? गुनाहों को छोड़ देना, आइंदा
दोबारा उस गुनाह के न करने का पक्का इरादा करना, और जब भी वो गुनाह याद आवे तो दिल के अंदर में नदामत का और पछतावे का पाया जाना। ये तो हुकूकुल्लाह के अंदर में है। और हुकूकुल इबाद के अंदर में तौबा का मतलब ये है कि जिसका हक देने का बाकी है या जिसका हक दबाया हुआ है, या मान लें कि विरासत के मसाइल के अंदर में या विरासत के मालों के अंदर में हमारे बाप दादाओं ने शरई तौर पर अगर तकसीम नहीं किया तो हम शरई तौर पर करें। हमारे भाई बहनों के अंदर में भी शरई तौर पर तकसीम न होने के बाद हमारे भाई बहनों में से कोई नहीं चाहता तो हम चाहें अपने को बाप दादा की जो मिल्कत मिली हुई है उसके अंदर में से किसी मौलाना को या मुफ्ती साहब को पूछ करके वरसा के दरमियान के अंदर में माल को तकसीम कर दे, ये भी ज़रूरी है। तो हुकूक की अदायगी जो है ये तौबा के अंदर में दाखिल है कि बंदा जो है हक वाली का हक अदा करे या जिसका हक है उसके पास में माफ़ कराए। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला तीसरी मिसाल बयान फरमाते हैं। अच्छा, तो आखिर के अंदर में यहाँ पर फरमाया कि फला युखफ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून, उनका अज़ाब न तो हल्का किया जाएगा और न उनको मोहलत और ढील दी जाएगी। तो गया हम और आप अभी खुशकिस्मत हैं, सआदतमंद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मौका दिया हुआ है, हुकूक की अदायगी का मौका दिया है, तौबा करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, ऊपर में था कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन के ऊपर में जुल्म मुसल्लत फरमाएंगे। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू, और जब देखेंगे वो लोग कि जिन्होंने शिरक किया, किन को देखेंगे? शुरकाअहुम, अपने शुरका को देखेंगे। कालू, तो कहेंगे रब्बना हाउलाई शुरकाउना, ये हमारे परवदिगार ये हमारे परवदिगार हाउलाई शुरकाउना, ये हमारे शरीक हैं। अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दुनिक, ये वो लोग हैं कि हम तेरे नीचे इन लोगों की इबादत करते थे और इन लोगों की हम पूजा करते थे। फ़अल्क़ौ इलैकुमुल क़ौला इन्नहुम लकाज़िबून, तो उनके सामने उस कौल को डाल दिया जाएगा और उनको कह दिया जाएगा कि इन्नकुम लकाज़िबून, तुम तो झूठे हो। वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन अस्सलाम, और वो लोग अल्लाह के सामने तौबा को पेश करेंगे। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, तो उनकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी और वो सारी चीज़ें हट जाएगी, छट जाएगी जिनका वो इफ्तिरा करते थे और झूठ बांधते थे। ये दो आयतों की तफसीर के अंदर में उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र के अंदर में ऐलान फरमाएंगे, मैदान हश्र में और क़यामत के दिन में ऐलान फरमाएंगे कि जो लोग जिनकी इबादत करते थे और जिनकी पूजा करते थे उनके साथ मिल जाओ, जिनकी इबादत करते थे उनके साथ में मिल जाओ। ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला के दरबार के अंदर में अल्लाह ताला की शान शान जो वजूद होगा उस वक्त के अंदर में अल्लाह के दरबार के अंदर में खड़े हो जाएंगे। दुनिया के अंदर में जो लोग कुफ्र करते थे और जो लोग शिरक करते थे तो वो अपने माबूदान बातिला को ढूंढेंगे, जिनकी पूजा उन्होंने दुनिया के अंदर में की अल्लाह को छोड़कर, तो उनको ढूंढेंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि दुनिया के अंदर में जिन लोगों ने जिनको पूजा और इबादत की उनके साथ में हो जाओ। तो वो ढूंढेंगे मैदान हश्र के अंदर में, कोई भी मिलेगा नहीं मैदान हश्र के अंदर में। जिनकी पूजा की गई और इबादत की गई वो मिलेंगे नहीं। उसके बाद में दूर से कुछ लोगों को देखकर ये मुशरिकीन और कुफार कहेंगे कि वही लोग हैं कि हम इनकी पूजा करते थे और इनकी इबादत करते थे,
इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि ये दुनिया के अंदर में कुछ पूजा करने वाले ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनकी पूजा की जाती है उनको नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर लोगों ने पूजना शुरू कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानकर उनको पूजना शुरू कर दिया। और ये जो कुरान पाक के अंदर में जो बूतों के जो नाम आते हैं, ये भी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनसे पहले के बड़े बड़े जो है उलमा किराम थे और बड़े बड़े औलिया किराम थे, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे जिनको उन्होंने बाद में पूजना शुरू कर दिया। तो मैदान हश्र के अंदर में कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनकी पूजा और इबादत की गई उनको तो नहीं मालूम कि उनके मरने के बाद दुनिया के अंदर में लोगों ने उनकी पूजा और इबादत की। शैतान है और शैतान ने वर्गलाया और शैतान ने रास्ते से भटकाया। तो शैतान को मालूम है कि किन किन लोगों को गुमराह करके अल्लाह की नाफरमानी और शिर्क करने के ऊपर में मुब्तला कर दिया, तो उनकी भी उन लोगों ने पूजा और इबादत करना शुरू कर दिया। उलमा ने लिखा है कि मैदान हश्र के अंदर में ये जो दो किस्म के लोग हैं जिनकी पूजा की गई, इबादत की गई और उनको मालूम नहीं था, ये तो ईमान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको दर्जात बुलंद फरमाएंगे और उनको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएंगे। और दूसरी किस्म के वो लोग हैं कि जो चाहते थे कि हमारी पूजा की जाए और हमारी इबादत की जाए, और शैतान के वर्गलाने की वजह से वो चाहने लगे कि उनकी पूजा की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को और उनके पूजने वालों को और मानने वालों दोनों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर में डाल देंगे। इसलिए कुरान पाक की आयत के अंदर में भी आता है कि शैतान को भी जहन्नम के अंदर में डाल दिया जाएगा। और फिर शैतान को जब जहन्नमी लोग कूसेंगे और उसको डांटेंगे डपटेंगे तो वो कहेगा कि फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तुम मुझे मलामत मत करो, अपनी मलामत करो, मैंने तो तुमको दावत दी अल्लाह के खिलाफ, तुमने क्यों माना मेरी बात को? तुमने मेरी बात को माना तो तुम खुद गुनहगार हो, मुझे मलामत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ ये ईमान वाले होंगे जिनकी बात के अंदर में इबादत और पूजा की गई, और ईमान वालों के दरमियान में और काफिरीन और मुशरिक के दरमियान के अंदर में बड़ा फासला होगा। आमने सामने बात नहीं करेंगे। ईमान वालों की बात फरिश्तों के ज़रिया से इनको बताई जाएगी और ये पूजने वालों की बात फरिश्तों के ज़रिया से उनको बताई जाएगी। तो वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जब देखेंगे शिरक करने वाले अपने शुरका को, कालू रब्बना हाउलाई शुरकाउना, तो ये पूजने वाले कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ये हमारे वो शरीक हैं, अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, जिनको हम पूछते थे तेरे अलावा और तेरे नीचे हम पूछते थे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला, ये बात उनको पहुंचाई जाएगी जिनकी इबादत और पूजा की गई थी। उनको कहा जाएगा कि ये लोग तो तुम्हारी पूजा करते थे, तुम्हारी इबादत करते थे। तो वो जो ईमान वाले होंगे वो कहेंगे कि उनको कहो कि इन्नकुम लकाज़िबून, तुम तो झूठे हो, हमने तुमको नहीं कहा था हमारी इबादत और हमारी पूजा करने की, और तुम हमारी इबादत और पूजा करते थे हम जानते नहीं हैं। यानी इनके मरने के बाद में उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी जाएगी। वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िनिस सलमा, और उनकी तौबा और माज़िरत उस दिन फेंक दी जाएगी। वहाँ अगर तौबा भी करेंगे तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और छट जाएगा उनसे वो सारा मामला कि जिसका वो इफ्तिरा करते थे और जिनको वो झूठ बांधते थे। अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग के जिन्होंने कुफ्र किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते से रोका, ज़िदनाहुम अज़ाबन, हम उनको अज़ाब ज़्यादा देंगे, फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब से ऊपर, बिमा कानू युफ़सिदून, इसलिए कि वो ज़मीन के अंदर में फसाद मचाते थे। अल्लज़ीना कफ़रू, ये कुफ्र है एक, और दूसरा यूँ कहो कि दलाल है, दलाल यानी गुमराही,
और इदलाल, इदलाल का माना है गुमराह करना। एक है गुमराह होना और दूसरा है गुमराह करना। तो ऐसे लोगों को कि जिन्होंने खुद कुफ्र किया और जिन्होंने खुद गुमराही का रास्ता इख्तियार किया और फिर उसके बाद में लोगों को भी गुमराह किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को दुगना अजाब देगा। एक अजाब जो है कुफ्र का, गुमराही का, और दूसरा अजाब उनको मिलेगा लोगों को गुमराह करने का। अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया, तो कुफ्र किया, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, ये एक गुनाह हुआ। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका। अल्लाह के रसूलों पर जो लोग ईमान लाना चाहते थे तो उनको रोकते थे, जो लोग ईमान लाए थे उनको सताते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाना चाहते थे उनको भी रोकते थे। तो गोया मक्का के मुशरिकीन और कुफ्फार की बात भी हो गई और अगले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात भी हो गई कि हर दौर के अंदर में जितने भी नबी आए तो उन लोगों ने नाफरमानी की एक, और जो लोग ईमान लाना चाहते थे अपने नबी के ऊपर में उनको ईमान लाने से भी रोका। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के रास्ते से उनको रोका। तो ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, ज़िदनाहुम, हम उनको ज़्यादा करेंगे, अज़ाब फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब के ऊपर अज़ाब। एक तो गुमराही का अज़ाब और दूसरा गुमराह करने का अज़ाब। एक तो न मानने का अज़ाब और दूसरा लोगों को रोकने का अज़ाब। बिमा कानू युफ़सिदून, इसलिए कि ये लोग ज़मीन के अंदर में फसाद मचाते थे। बिमा कानू युफ़सिदून, ज़मीन के अंदर में फसाद मचाते थे। इनके हक़ के अंदर में फसाद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान लाना चाहते थे तो ये लोग ईमान से रोकते थे, ये हुआ फसाद। और मदीना मुनव्वरा के अंदर में जाने के बाद जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उनके अंदर में कुछ ऐसा भी हुआ कि एक मर्द मुसलमान हुआ, औरत मुसलमान नहीं हुई, या औरत मुसलमान हुई, मर्द मुसलमान नहीं हुए, बाप मुसलमान हुआ, बेटा मुसलमान नहीं, बेटा मुसलमान, बाप मुसलमान नहीं। इस तौर पर भी इब्तिदा के अंदर में ऐसा पाया गया। तो ये जो बीच वाली जो नस्ल थी मुनाफिकीन, न खुल्लन खुल्ला वो काफिर थे और न खुल्लन खुल्ला वो मुसलमान थे। बीच वाली नस्ल जो मुनाफिकीन थे, ये मुनाफिकीन जा करके इस्लाम लाने वालों को और ईमान लाने वालों को समझाते थे कि देखो तो तुम्हारे बाप ने जो है अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ा, तुमने क्यों अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया। तो ईमान लाने वालों को समझाते थे। या मान लो कि अगर मियाँ बीवी में से अगर एक ईमान लाया तो ईमान लाने वालों को समझाते थे। क्या समझाते थे कि अपने बाप दादा के दीन के ऊपर में वापस आ जाओ। और इसको इस्लाह समझते थे, इसको इस्लाह समझते थे कि नाउज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर के, इस्लाम लेकर के आए तो लोगों के दरमियान के अंदर में जुदाई हो गई, बाप और बेटे में जुदाई, मियाँ और बीवी के अंदर में जुदाई, और भाई भाई के अंदर में जुदाई, भाई बहन के अंदर में जुदाई, ये इस्लाम की वजह से हुई। तो इसको फसाद समझते थे और दीन और इस्लाम से रूगर्दानी करने के लिए और मुर्तद होने के लिए जो समझाते थे उसको इस्लाह कहते थे। पहले पारी के अंदर में आया कि जब उनको कहा जाता था कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, उनसे जब कहा जाता था कि ज़मीन के अंदर में फसाद मत मचाओ, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इस्लाह नहीं है, यही फसाद है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, ये फितना और फसाद मचाने वाले वही लोग हैं लेकिन उनको अक्ल नहीं है, उनको शऊर नहीं है, समझ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों का तज़किरा फरमाया कि जिनकी इबादत की गई, पूजा की गई, मैदान हश्र के अंदर में वो लोग पूजा करने वालों के खिलाफ गवाही देंगे। और इसके बाद में अगले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों को भी लाया जाएगा और वहाँ पर भी उम्मत इजाबत और उम्मत दावत दोनों उम्मतें होंगी। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत दावत के खिलाफ
अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ गवाही देंगे। इसका तज़किरा अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, वयौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, और हम लाएंगे, हम उठाएंगे, हम पेश करेंगे फी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत के अंदर में, यानी अगली उम्मतों के अंदर में, शहीदन एक गवाही देने वाला, अलैहिम उन उम्मतों के खिलाफ वो गवाही देने वाला होगा, और गवाही देने वाला मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से होगा। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि जो नबी अगले ज़मानों के अंदर में गुजरे तो हो सकता है कि उसी कौम का और उसी ख़ानदान का नबी हो, और ये भी हो सकता है कि नबी किसी और जगह का हो, लेकिन बसने के एतबार से उनकी बस्ती के अंदर में उसने रहना शुरू कर दिया हो, तो गवाह भेजेंगे, नबी को भेजेंगे, उठाएंगे, शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। अब ये वहाँ पर नबियों को लाया जाएगा और नबी उनके खिलाफ गवाही देंगे। इसके बाद में ये जो उम्मत मुहम्मदिया है, ये उम्मत मुहम्मदिया भी गवाही देंगे अगले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़क़त के अंदर में, और अगले अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो न मानने वाले थे उम्मत दावत, उनके खिलाफ ये लोग गवाही देंगे कि बारी ताला तेरे अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर में आए थे और तेरे अहकाम लेकर आए थे, तेरी किताबों को लेकर आए थे, इनको समझाया था, लेकिन ये लोग समझे नहीं थे। तो अब ये उम्मत दावत जो है, अगले अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो नाफरमान कौम होगी, वो कहेगी कि ये उम्मत मुहम्मदिया ये तो सबसे आखिर के अंदर में आई, और हम जिस ज़माने के अंदर में दुनिया में मौजूद थे उस वक्त के अंदर में ये उम्मत तो थी नहीं, तो उनको कैसे मालूम पड़ा। ये जब उम्मत दावत की तरफ से जब सवाल किया जाएगा कि तुम लोग हमारे खिलाफ में कैसे गवाही देते हो, उस वक्त के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भेजेंगे, वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई, हम आपको गवाह बना करके लाएंगे उन लोगों के खिलाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि मैंने अल्लाह के अहकाम को मेरी इस उम्मत को पहुँचाया, अल्लाह के तरीक़ों को, अल्लाह के अहकाम को मैंने अपने तरीक़ों से इनको बतलाया, उनको करके बताया, और मैंने बताया कि अगली उम्मतों के अंदर में ये हाल हुआ, तो इसकी वजह से ये मेरी उम्मत जो है इन लोगों के खिलाफ के अंदर में गवाही दे रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाया जाएगा, वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और उतारा हमने आप पर किताब। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि हमने आप पर किताब उतारी कुरान की शक्ल के अंदर में, तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का उसके अंदर में बयान है, हर चीज़ की उसके अंदर में वजाहत है, हर चीज़ की इसके अंदर में तफसील है, हर चीज़ की इसके अंदर में तफसीर है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में मौजूद है। इसके अंदर में आम तौर पर हमारे दरमियान में जो मशहूर है कुरान पाक के बारे में कि कुरान पाक के अंदर में सारी चीज़ें मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, ये हमारे और आपके दरमियान के अंदर में मशहूर है। उलमा ने और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज़ की वजाहत कुरान पाक के अंदर में मौजूद है, हर चीज़ की वजाहत हमने कुरान पाक के अंदर में उतारी। इसका माना और मतलब शरीयत के अहकाम कुरान पाक के अंदर में मौजूद है। कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अहकाम नाजिल फरमा दिए हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में जो पेश आए और आज तक जो पेश आए और आइंदा ज़माने तक भी जो अहकाम पेश आएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मसाइल का हल कुरान पाक के अंदर में जो है ज़िक्र फरमा दिया है। ये अलग बात है कि कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का करिश्मा बतावे या किसी आदमी को अगर बताना चाहे तो बता दे और वो चीज़ उसको हासिल हो जाए, वरना तिबयान लिकुल्लि शै का मतलब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम है, सारे अहकाम इसके अंदर में मौजूद है। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला
ऐसी चीज़ भी बता देते हैं कुरान पाक के अंदर में। ये मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात के अंदर में लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है साहबजादे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर में सनद के साथ में जो हदीस लाने वाले हैं हिंदुस्तान में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। जितने भी हमारे यहाँ उलमाए किराम हैं जो हदीस पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, इनको जो सनद दी जाती है, सिलसिला जो सनद दिया जाता है वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक पहुँचता है, फिर उसके बाद में अरब तक वो पहुँचता है। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आदमी ने आकर के ये कहा कि कुरान पाक का ये दावा है कि कुरान पाक के अंदर में सारी चीज़ें मौजूद है। मैं कई ज़माने से कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर वगैरह देखता हूँ, लेकिन कीमिया का नुस्खा मुझे मिला नहीं कुरान पाक के अंदर में। कीमिया का नुस्खा, कीमिया के अंदर में ऐसा होता है कि अगर आपके पास में तांबा है, पीतल है, तो चांदी है, तो कुछ चीज़ें मिलाओ, उसकी वजह से जो है वो सोना बन जाए, जिसको कीमिया कहते हैं। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से वो आदमी कहने लगा कि कुरान का दावा है कि सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन ये नुस्खा मुझे मिला नहीं। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किस चीज़ का तो सोना बनाना चाहता है। तो कोई तांबे का टुकड़ा था उसके पास में, उसने बताया कि ये तांबे का टुकड़ा है और मैं इसको सोना बनाना चाहता हूँ। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तांबे का टुकड़ा जो था वो हाथ के अंदर में लिया और उसके बाद में कुछ कुरान पाक की आयत पढ़ी और आयत पढ़ करके दम कर दिया। दम करने के बाद में उसको दिया कर ले। अब उसके हाथ के अंदर में गया तो देखा तो ये तो सोना बन गया। तो उस आदमी ने कहा कि ये आयत मुझे बताओ। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, वो आयत तो मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। कुरान का जो दावा है कि कुरान पाक के अंदर में सब चीज़ मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, और तूने कहा कि कीमिया मौजूद नहीं है, मैंने कीमिया बता दिया तेरे को कि ये तांबे से जो है सोना बन गया। तो कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर कर दे, वो अलग बात है। दूसरी बात एक और भी है, इल्मी बहस है कि सारी चीज़ें कुरान पाक के अंदर में मौजूद नहीं, अहकाम भी मौजूद नहीं है। अहकाम इजमाली तौर पर शॉर्ट के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया सारी अहकाम, सिवाय विरासत के। वारसा वंशनी का हुक्म ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ, डिटेल के साथ में बयान कर दिया। पूरा जितना भी पेश आता है सारा का सारा, 8 औरतें हैं और 4 मर्द हैं, 12 ये ज़वील फुरूज है, फिर उसके नीचे 4 किस्म के लोग हैं असबात, और फिर उनके नीचे तीसरे नंबर पर ज़वील अरहाम कहलाते हैं। सबकी तफसील और डिटेल कुरान पाक ने बयान कर दी। इसलिए विरासत वाले मसले के अंदर में इख्तिलाफ होगा उसके साथ में जो कुरान नहीं मानता है, जो कुरान को मानता है उसके साथ में कोई इख्तिलाफ नहीं। इसलिए विरासत के अहकाम देवबंदी मानते हैं, बरेलवी मानते हैं, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद मानते हैं, शिया लोग भी मानते हैं। इसलिए कि शिया लोग कुरान को मानते, कुरान का इनकार नहीं करते। तो विरासत के मसाइल के अंदर में कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाकी जितने भी अहकाम हैं उसकी तफसील और डिटेल कुरान पाक के अंदर में नहीं है। ये तो आगे पीछे देख करके, तर्जुमा देख करके हम सब साबित करते हैं कि ये ज़ोहर की नमाज, ये असर की नमाज, ये मगरिब की नमाज, ये इशा की नमाज, ये फजर की नमाज, कुरान पाक के अंदर में तज़किरा नहीं है। इसी तरीके से नमाज़ों की डिटेल कि भाई फजर में 4 रकात, ज़ोहर के अंदर में 12 रकात, असर में 8 रकात, मगरिब के अंदर में 7 रकात और इशा के अंदर में 17 रकात, कुरान पाक के अंदर में नहीं है। कुरान पाक के अंदर में है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, कितने दे, कौन दे, किसको दे, कितना दे, ये तफसील और डिटेल कुरान पाक के अंदर में नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा था, कुरान लेकर के भेजा था, और कुरान के अहकाम पर अमल करके बताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। तो सारी डिटेल और आपको मिलेगी तफसील किसके अंदर में, हदीस के अंदर में मिलेगी। इसलिए दलील जो है, दलील सबसे पहले दलील कुरान पाक, दूसरे नंबर पर दलील हदीस है, और तीसरे नंबर पर इजमाई उम्मत है। इजमाई उम्मत का मतलब कोई मसला है
کہ जो कुरान पाक के अंदर में सरसरी नज़र करने से नहीं मिला, हदीस के अंदर में वो मसला नहीं मिला, उम्मत में पूरी उम्मत में मिल करके उसके ऊपर में इत्तेफाक किया, ये भी हमारी दलील है। और उसके बाद में चौथी दलील जो है क़यास शरई है, कुरान और अहादीस और इज्मा उम्मत के अंदर में गौर व फिक्र करके ये नई चीज़ें जो आज दुनिया के अंदर में वजूद के अंदर में आई हुई है उनके अहकाम को साबित करना, इसको क़यास शरई कहते हैं। ये गैर मुक़ल्लिदीन दो चीज़ों को मानते, कुरान और हदीस को मानते और इज्मा तक इज्मा को मानते, लेकिन हुआ नहीं। और कयास तो कहते कि ये तो सब अक्ली दलील, अक्ली चीज़ नहीं। इसलिए मैंने कहा कयास नहीं, कयास शरई, उसके अंदर में लंबी चौड़ी तफसील है। एक हुस्सानी करके एक किताब है, तो उसके अंदर में बाबुल कयास है, पढ़ाने के अंदर में 6 महीने लग जाते हैं उसको, वो लंबी चौड़ी तफसील है, बहस है, बयान करेंगे किसी दिन अगर मौका होगा तो कुरान पाक के अंदर में अहकाम भी मौजूद नहीं है, ये अहादीस के अंदर में उसकी तफसील डिटेल वगैरह मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ का उसके अंदर में बयान है, तफसील है, वह हुदन और हिदायत का ज़रिया और सबब है, वह रहमतन और ये रहमत है, वह बुशरा लिल मुस्लिमीन और इस्लाम कबूल करने वालों के लिए और मुसलमानों के लिए बसारत और खुशखबरी है। तफसील है तिबियानन लिकुल्लि शै, अहकाम के एतबार से, शरीयत के अहकाम के एतबार से। इसके बाद में एक आयत जो मैंने पढ़ी थी, आइंदा कल उसकी तफसीर अर्ज़ करेंगे, लेकिन अभी बता दूं कि यहाँ पर रुकू पूरा हो गया, 18 रुकू पूरे हैं, 19वां रुकू शुरू हुआ। 18वें रुकू के आखिर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर किताब नाजिल की, तिबियानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ की तफसील और वजाहत और बयान उसके अंदर में मौजूद है। इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे 19वें रुकू के शुरू के अंदर में बयान फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत देखने के लिए तो 2.5 सत्र की ये आयत है, 2.5 सत्र हैं। और इससे पहले जो अल्लाह ताला ने फरमाया तिबियानन लिकुल्लि शै, कुरान पाक के अंदर में हर चीज़ की वजाहत मौजूद है। तो इस सूरत के अंदर, इस आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा दीन, पूरा मज़हब इस्लाम इस आयत के अंदर में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। इसके अंदर में इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कल इंशाअल्लाह वो तफसील से इसके ऊपर में बात करेंगे। आज इतना समझो कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि कुरान पाक हर चीज़ के लिए बयान है, तिबियान है, वजाहत है। तो ये इस आयत के अंदर में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इस आयत के अंदर में 3 चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और 3 चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका, यानी 3 चीज़ें अम्र के कबील से हैं और 3 चीज़ें नहीं के कबील से हैं। 3 चीज़ें करने की है और 3 चीज़ें न करने की है। और चूँकि इसके अंदर में लंबी चौड़ी तफसील भी है और बड़ी खूबी है इस आयत के अंदर में कि पूरे कुरान पाक का निचोड़ और खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में बयान फरमा दिया है। इसीलिए खुलफाए राशिदीन में से 5वें खलीफे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये भी खुलफाए राशिदीन के अंदर में उनको उम्मत ने ज़िक्र फरमाया। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि ये आयत पूरे कुरान पाक का निचोड़ है और पूरे कुरान पाक का खुलासा है, तो खुतबे के अंदर में इसको ज़रूरी करार दिया कि जुमा के खुतबे के अंदर में और ईद के खुतबे के अंदर में इस आयत को पढ़ी जाए। आज भी हमने खुतबा जो सुना नहीं, इसमें सुना था नहीं, ये आयत है और हर जुमा के खुतबे के अंदर में ये आयत पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है अदल और इंसाफ करने का और एहसान करने का, व इताइ ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों को देने का, व यनहा अनिल फहशा और अल्लाह ताला रोकता है बेहयाइयों से, वल मुनकर
اور بری چیزوں سے، والبغی اور ظلم سے، یعظکم ان چیزوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے۔